नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नोवा बजट पेश किया और शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और आयकर में भी कई अहम घोषणाएं की। विकसित भारत के लक्ष्य को नई दिशा देने का दावा किया गया और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने पर सरकार का पूरा जोर रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपना नोवा बजट जिस तरह से पेश किया है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल से लेकर आयकर टैक्स के लिए कई ऐलान किए। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत के लक्ष्य को नई दिशा देने वाला बजट है और हम विकसित भारत की दिशा में और रिफॉर्म एक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में अग्रसर है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि ये बजट सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य के साथ पेश किया गया है, जिसमें हम अर्थव्यवस्था को गति देने और उसे गति प्रदान करने के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, ताकि विकास की गति बनी रहे और आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। So this budget being the first one, as the Honorable Prime Minister said 2 days ago, this being the first one for the second quarter of this century, also leading towards Viksit Bharat 2047. We are laying the path and giving a push to the economy to maintain the growth momentum, and for that growth momentum or sustained economic growth, which we want to ensure, primarily we are looking at building the ecosystem with structural reforms which will go on. Reforms have been carried out. We are continuing to do the reform activities. It will continue with an aim to make sure that we create enough environment for improving productivity and making sure employment is generated. Also, technology, 21st century, this century is completely driven by technology. So we will ensure that technology is brought in to benefit the common man, to make sure common man benefits in the sense of ease of doing living, or for his business to prosper, or for farmers for greater productivity or better logistics, whatever. So technology for benefiting every common man. And above all, with all this, inclusive development. Sabka Saath, Sabka Vikas, and that is why you heard me bringing in schemes which have good allocations for bringing better health facilities, creating a cadre of people, not cadre in that sense, but a bulk of people who can come in as health workers, paramedics, and so on, and also making sure we are able to provide dignified opportunities for Divyangjan. Mental health has also received a lot of attention. So these are the side for Viksit Bharat and making sure Sabka Vikas hoega. But the idea is the advantage and the momentum that we gained since after COVID by increasing public capital expenditure will continue. We've announced that 12.2 lakh crores are coming through public expenditure this time. It is 4.4% of the GDP. I'd like you all to please notice that, which is the highest, at least in the last 10 years. It could even be highest if you were to take data earlier. No increment in capital expenditure, sustained fashion, has happened ever before. This one marking 4.4% of the GDP. Then what are the kind of things which will happen through it? You will have dedicated freight corridors. I've named Dankuni in the east, Surat in the west. Then I've also highlighted that 20 new national waterways, not national highways, national waterways are being planned. And again there, those are going to pass through some of the critical mineral. बजट 2026 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा से कृषि, डेयरी और फिशरी सेक्टर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और इस बजट में भी किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया। उन्होंने बताया कि नारियल, कोको, काजू और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए कई अहम कदम उठाए गए, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार और वित्तीय सहायता उपलब्ध करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि बजट में भी कई घोषणाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी और देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार एआई, इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। साथियों, ये बजट एम्बिशियस भी है और ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है। मैं एक बार फिर निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस फ्यूचरिस्टिक बजट के लिए, संवेदनशील बजट के लिए, गांव, गरीब, किसान का कल्याण करने वाले बजट के लिए। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट का जोरदार स्वागत किया। जम्मू स्थित भाजपा मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सदन से बजट का लाइव प्रसारण देखा और इस दौरान नेताओं ने बजट में की गई घोषणाओं को देश की आर्थिक मजबूती और विकास की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट आम जनता, किसानों, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग को राहत देने वाला है। पार्टी नेताओं के अनुसार बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और औद्योगिक प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दिया गया है। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत करेगा। आज देश का बजट पेश हुआ है और इस बजट पेश के लिए आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें पूरे प्रदेश के प्रबुद्धजन, इंटेलेक्चुअल लोग जहां पे बैठे हैं, बजट सुन रहे हैं। मुझे लगता है मैं भी बजट सुन रहा हूं तो एक अच्छे माहौल में, वातावरण में, जिस तरह बजट चला है अभी, इसमें महिलाओं के लिए कहा गया है कि शी मार्ट खुलेंगे, मैं जितना मैंने सुना है, और खासकर महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात कही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको मार्केट से जोड़ा जाएगा, इससे लोगों की इनकम बढ़ेगी। युवाओं के लिए बात की है। जम्मू के लिए उन्होंने जो हिली ट्रेन के लिए बात की है, वो भी बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के लिए। इस तरह टैक्स कलेक्शन 28 लाख करोड़ रुपया पहुंचना, उसकी बात कही है। जो हमारा खेलो इंडिया की बात करते थे, उसमें भी बहुत बड़ा लेकिन बड़ी चेंज लाई है उन्होंने, कि एलैबोरेट तो करेंगे, उसमें आएगा। मुझे लगता है लगभग हम बजट को देखें एक बहुत बड़ा अच्छा, और लोगों का ध्यान रखा गया है, आम आदमी का ध्यान रखा गया है, युवाओं का ध्यान रखा गया है, महिलाओं का, दिव्यांगों के लिए बड़ा अच्छा कहा है कि दिव्यांगों के लिए उनकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जाएगी, वो कैसे आत्मनिर्भर हो सके, और दिव्यांगों के लिए खास पैकेज रखा गया है, उसके लिए बात की गई है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि लगभग जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरी जो सरकार है गरीब, किसान, मजदूर और आम लोगों की सरकार है, वही इस बजट में पूरा झलक रहा है। इससे आम आदमी की इकानमी बढ़ेगी, देश आगे जाएगा, और देश की दुनिया की पहली इकानमी बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए जो उन्होंने वायदा किया है। भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर इकाई ने आज पेश किए गए केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए इसे जनहितैषी करार दिया। श्रीनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि इस बजट में समाज के हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ये बजट जम्मू कश्मीर के विकास को नई गति देगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेगा। ठाकुर ने दावा किया कि बुनियादी ढांचे, पर्यटन और उद्योग क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें आगामी जम्मू कश्मीर बजट से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। आज का जो बजट है, जो हमारी
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। इसमें हर एक सेक्टर, आप देखिए, हेल्थ, एजुकेशन, हेरिटेज, कल्चर, हर एक सेक्टर पे इस पे ध्यान दिया गया। और हम यूं समझ लें कि ये जो बजट है इसमें एमएसएमई उस पे फोकस किया गया और जॉब ओरिएंटेड बजट है कि जॉबों को कैसे जनरेट किया जाए, एक विजन इसमें दिया गया है। हम यूं कह सकते हैं कि ये जो नया बजट है, तमाम सेक्टर्स, चाहे रेलवेज हो, चाहे रोड्स हो, चाहे जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, उन सब के लिए इस बजट में एक प्रावधान, एक विजन दिया गया है आगे आने वाले 2026 और 27 का। हम कह सकते हैं कि ये प्रो पीपल है, प्रो पोर है। इससे खासकर जो हमारी बिजनेस लेडीज है, जो हमारी माएँ बहनें बिजनेस करती है, या जिस तरह से बजट हमेशा फोकस रहा है जवानों पे, महिलाओं पे, किसानों पे, मजदूरों पे, ये भी वही बजट है जो एक आम आदमी, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, उसको ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। ये जो बजट है इससे जम्मू कश्मीर को भी बहुत फायदा पहुंचेगा, क्योंकि आप देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात की गई। और खासकर जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स है, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर में, इसमें टूरिज्म बढ़ाने की इसमें बात की गई है। और जो मेडिकल टूरिज्म की बात की गई, कश्मीर से ज़्यादा कहीं स्कोप नहीं है कि जिसमें हम मेडिकल टूरिज्म पे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कुदरती तोहफा कश्मीर को अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है, जिसमें हम मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। मैं इन शॉर्ट कह दूंगा, अभी बजट चल ही रहा है, आगे देखते और क्या आएगा, लेकिन इन शॉर्ट लफ्ज़ में कहूँगा ये प्रो पीपल प्रो पोर बजट है। इस बजट से देश की ग्रोथ होगी, जो अभी 6.8 है, लेकिन जो टारगेट 2027 का रखा गया है वो 60.2 का, और उसको भी हम अचीव करेंगे। सांबा जिले की रामगढ़ विधानसभा के विधायक डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल और विजयपुर विधानसभा के विधायक चंद्र प्रकाश गंगा ने आज पेश किए गए केंद्रीय बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि ये बजट देश के समग्र विकास को गति देने वाला है और विशेष रूप से युवाओं व किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। दोनों नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में रोजगार सृजन, कृषि क्षेत्र को मजबूती और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बजट से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आम आदमी को सीधा लाभ पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। बहुत ही एक बैलेंस्ड और आने वाले समय में भारत को आगे लेकर बढ़ने वाला बजट है। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग का मेक इन इंडिया के माध्यम से यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनेंगी और उसमें युवाओं को जो रोजगार मिलेगा, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लोग जो इनको रोजगार मिलेगा, वो भी बड़ा कदम होगा। हेल्थ के सेक्टर में आपने देखा होगा जिला स्तर पर जो हॉस्पिटल हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। दवाइयाँ सस्ती की हैं, खास करके बाहर से आने वाली दवाइयाँ, और कैंसर को ठीक करने वाली दवाइयाँ जो हैं उनके रेट में भारी जो है कमी की गई है। और इसी तरह जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कहा, कहीं ड्यूटी कम की गई है, जो बाहर एक्सपोर्ट होगा उसमें बढ़ोतरी की गई है। और इंफ्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मुझे लगता है एक मॉडर्न समय का एक अच्छा बजट है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मोदी जी जो विकसित भारत 2047 का सपना देख रहे हैं, उसको पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान इस बजट का होगा। एमएसएमई को बहुत बढ़ावा दिया है और हमारी जो मेडिसिन जो हैं उनको, और एजुकेशन पर आपने देखा लड़कियों की ग्रोथ के लिए हम, और हमारी लखपति दीदी के लिए, उनके लिए हॉस्टल बनाए लड़कियों के लिए, और इनके लिए भी जो है वो बहुत सी अच्छा बजट रखा है। जो लखपति दीदी का है वो हर एक काम कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग में भी आ सकती है, ट्रेडिंग में भी आ सकती है, मॉल भी खोल सकती हैं, रेस्टोरेंट भी खोल सकती हैं। वो मतलब एक अपना समूह बना के, मैं ये कहता हूँ कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो उसके साथ साथ जॉब तो ऑटोमेटिकली बढ़ते ही हैं। आज अगर चाइना दुनिया में नंबर 1 है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी दुनिया में नंबर 1 है, और दूसरे नंबर पर भारत है। हमने भारत को नंबर 1 पे ले जाना है। यही सोच के साथ जो मोदी जी का जो बजट है, उसने मैं ये कहूँगा कि धन
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महिला मोर्चा ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे जनहित और विकासोन्मुखी बजट बताया है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष नेहा महाजन ने नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में विधायक देवयानी राणा और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बजट का लाइव प्रसारण देखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बजट समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि बजट में महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। आज का जो बजट था, हम लोगों ने देखा कि उन्होंने 3 कर्तव्य की बात की, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की कि आर्थिक स्थिति किस तरह बढ़ेगी और हम ज़मीनी स्तर पर लोगों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे, और सबका साथ सबका विकास की बात की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही करते आए हैं, जब से वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं कि जब हम सभी एक सूत्र में बंधेंगे तो ही हमारा जो देश है वो विकसित होगा। आज का जो हमारा बजट का जो सेशन है, ये एक विकसित भारत बजट सेशन है, जो कि भारत को 2047 में किस तरह भारत को विकसित रूप में देखेंगे। आज का जो बजट है वो इसका एक ब्रिज बनेगा। ये सिर्फ आंकड़े ही नहीं है, ये एक रोड मैप है, किस तरह सरकार का पैसा इकट्ठा होता है और किस तरह वो भारत में यूज किया जाता है एक भारत को। केंद्रीय बजट को लेकर जम्मू कश्मीर के पर्यटन कारोबारियों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कारोबारियों ने बजट में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए की गई घोषणाओं का स्वागत करते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया। उनका कहना है कि बुनियादी ढांचे के विकास, धार्मिक और साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहन तथा नई योजनाओं से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। हालांकि कारोबारियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पर्यटन परियोजनाएं लंबे समय से लंबित पड़ी हुई हैं, जिन्हें जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। उनका मानना है कि जब तक इन परियोजनाओं को अमलीजामा नहीं पहनाया जाएगा, तब तक बजट घोषणाओं का पूरा लाभ क्षेत्र को नहीं मिल पाएगा। आपकी ये जो बजट हर सेक्टर में बैलेंस है, जो ही कोई भी सेक्टर हो। सहा रहा सवाल टूरिज्म का। टूरिज्म में रोजगार को बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा कि हम पर्यटन के ऊपर स्पेशल कंसंट्रेशन रखेंगे और 10,000 ट्रेवल गाइड्स तैयार करेंगे विद द हेल्प ऑफ IIM। ये तो बिल्कुल मुबारकबाद की बात है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी चीज़ कहूँगा, 2024 में ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जब बजट प्रेजेंट की थी, तब यहाँ पे हमारी लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ पर कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें की थी, मेंशन की थी। यहाँ पे दोबारा में वाटर गेम्स पार्क बनाया जाएगा और साथ में कन्वेंशन सेंटर गोल्फ क्लब के पास बनाया जाएगा, और इसके साथ साथ में वर्टिकल लिफ्ट यहाँ से मुबारक मंडी से पीर खो से मुबारक मंडी तक बनाया जाए, ताकि हेरिटेज सर्किट एक बनाया जाएगा, पूरा वहाँ पे चला जाएगा। लेकिन उन घोषणाएं काफ़ी की गई थी और साथ साथ में ये भी कहा था कि जो जम्बो जो है वहाँ मोर स्पीशीज बनाई जाएंगी, साथ में बहुत सी बसोली में भी इसकी डेवलपमेंट की जाएगी, और ऑफ भी डेस्टिनेशन थी, सुचेतगढ़ हो, सुरिनसर हो, मानसर हो और पत्नीटाप हो, वहाँ पे काफ़ी प्रमोशन होगी, साथ में डेवलपमेंट होगी। लेकिन ये घोषणाएं 2024 में सिर्फ कागजों पर सिमट रही। 2025 हमारी लोकल गवर्नमेंट बनी, उन्होंने भी ऐसी चीज़ें कही कि ये चीज़ें सब डेवलप की जाएंगी और वहाँ स्पेशल फंड्स रखे गए। और इवन एक चीज़ यहाँ पे पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी, वहाँ ये भी कहा गया टूरिज्म एडवाइजरी कमेटी भी बनाई जाएगी। वहाँ पे ऑर्डर भी निकला, लेकिन आज तक प्रैक्टिकली वहाँ पे एडवाइजरी कमेटी नहीं हुई। हमने प्री बजट डिस्कशन में माननीय CM साहब को कहा कि आपने ये घोषणा पिछले साल की थी, व्हाट इज योर अचीवमेंट वहाँ पे नहीं हुआ, तो इसलिए अगर ऐसी घोषणाएं होती रहेंगी तो प्रैक्टिकली टूरिज्म कहाँ बढ़ेगा। आप कहें बजट तो बैलेंस्ड है, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं तो ट्रांसपोर्ट की बात करूँगा। ये ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ खास रखा नहीं है इसमें। ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म खासकर J&K में इकट्ठा चलता है, तो यहाँ टूरिज़्म के लिए तो उन्होंने रखे हैं प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी, लेकिन हालत ये है कि यहाँ के जो लोकल हमारे जितने भी स्पॉट हैं, टूरिस्ट स्पॉट हैं, रोड्स की बुरी हालत है, गाड़ी चलाना तो बहुत मुश्किल है वहाँ पर, टूरिस्ट को लेकर जाएं कहाँ। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमारा स्टेट का भी बजट आएगा, इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए, ट्रांसपोर्ट को इंडस्ट्री में काउंट करना चाहिए, और इसके लिए कुछ स्पेशल ऐसा पैकेज हो ताकि देखिए अभी गाड़ियाँ जो पुरानी हो रही हैं उनको गाड़ियों को नए लेने के लिए कोई ऐसा इनको करना चाहिए जिससे कि ट्रांसपोर्ट भी ज़िंदा हो सके। मैं समझता हूँ कि जिस तरह इन्होंने ये स्मार्ट सिटी के चक्कर में जो अभी हमारी यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं
इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चल रही हैं, तो जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको भी इसके लिए इनको लोन्स देने चाहिए अच्छे ढंग से, ताकि ये भी उसी लेवल पर गाड़ियाँ चला सकें। और मैं टैक्सी की भी बात करूँगा, टैक्सी के लिए इनको ये रखना चाहिए कि टूरिज़्म को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए टैक्सी वाला जो है वो इसमें ज़्यादा अपना इनिशिएटिव लेता है, तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की एक अहम और बड़ी खबर की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा और एलजी मनोज सिन्हा के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को पेश करने जा रहे हैं बजट, और आक्रामक मोड में विपक्ष भाजपा और पीडीपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र कल सोमवार को शुरू होने जा रहा है और इस बजट को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और विपक्ष ने उमर अब्दुल्ला सरकार को घेरने के लिए आक्रामक रणनीति तैयार कर ली है। वहीं पर बात करें, कांग्रेस ने अलायंस धर्म निभाने की बात दोहराते हुए जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के संकेत भी दिए हैं। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण से होगी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को बजट पेश करेंगे। ये सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा और जिसमें कुल 22 बैठकें प्रस्तावित है। सत्र की पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा, कांग्रेस और पीडीपी का विधानमंडल दल की बैठकें हो चुकी हैं और भाजपा ने डेली रेटेड वर्कर्स, 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना और फ्लड रिलीफ पैकेज के मुद्दों को जोर शोर से उठाने की बात कही है। तो वहीं पर बात करें, कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि पार्टी गठबंधन के साथ खड़ी रहेगी लेकिन जन समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाएगी। के लोग जिस तरह से बाकी स्टेट्स के लोग जो हैं यकीनन बजट का इंतजार करते हैं, हम भी बेसब्री के साथ बजट का इंतजार करते हैं, चाहे वो सरकार साबिक सरकार रही हूँ या आज की सरकार हूँ। लेकिन बदकिस्मत ये है कि इसका बजट का कितना हिसाब खर्च कर पाए। मुझे अभी कोई मिला था यहाँ डाउनटाउन, वो कह रहा था 2024-25 की लायबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप 700 करोड़ की लायबिलिटी को क्लियर करने के बाद बजट का एक्सपेंसेस जो है वो आप हमें बताएं कि आप कितना खर्च कर पाए। लेकिन चूंकि बजट का जो इजलास है इसमें तवील बहस व मुबाहिसे होते हैं, हमारे इक्तिसादियात में हमारा एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, उसके बाद जो नेशनल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं मरकज़ की तरफ से, यकीनन जो पैसा वहाँ से आएगा वो किस तरह से खर्च होगा। और उसमें पहले से हमें इबाम है कि जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेशन में जो पहले से बताया गया कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, कितना नहीं खर्च कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार में चूंकि हमने कहा कि इससे पहले भी जो बजट पेश किए गए उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ और उसका जो आपने लायबिलिटी में कितना डाला और खर्च कितना किया, लेकिन हमारी तरफ से कुछ गुजारिशात होंगी। एक बजट बनने से पहले आपने वादे किए थे डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने का, वो भी कंसर्न बजट के साथ है। उसके बाद जिस तरह से महबूबा मुफ्ती साहिबा ने आज डाउनटाउन में जिस दरबार के बाद जो कटरा में प्रस्तावित रोपवे परियोजना के खिलाफ एक बार फिर से विरोध तेज हो गया है। सोमवार को घोड़ा, पिट्ठू और पालकी सेवा से जुड़े लोगों ने कटरा में जोरदार प्रदर्शन कर अपनी मांगे प्रशासन के सामने रखी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रोपवे शुरू होने से उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ेगा और हजारों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने मांग की कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और साथ ही उन्होंने कल कटरा पहुंच रही रोपवे परियोजना की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी से मुलाकात का समय देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी, यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि या तो मजदूरों को 20-20 लाख रुपया दिया जाए तो यहाँ ये रोपवे का काम बंद कर दिया जाए। ये मांग थी हमारी। आज हमने छिड़कों पे जो रखी है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे ये रखी है। बाकी कल कमेटी आ रही है, देखते हैं टाइम देती है नहीं देती है। अभी बात हुई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने कहा है लिखित में दो कि आप मिलना चाहते हो तो हम टाइम देंगे। हमने कहा है कि हम मिलना भी चाहते हैं और मिलना हम शालीमार पार्क में चाहते हैं, ताकि हम नहीं चाहते हजारों लोग जब रोड पे निकले यात्रा डिस्टर्ब हो या कोई ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हो, तो इसलिए हमने मांग रखी है। आगे देखते हैं, अगर मांग नहीं मानी गई तो बैठ के फैसला लेंगे। हमने बोला है, मजदूरों को बोला है, अगर मांग नहीं मानी गई तो हम शहादतें देंगे। यहाँ पे हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा जा रहा है।
हमारे बच्चे पलते हैं यहाँ पे, और कुछ तो स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, माँ बाप की सेवा दवाई तो यहाँ से ही खर्चा जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को सुनना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ये रूलिंग है कि मजदूरों के लिए। थना मंडी सब डिवीजन में जल शक्ति विभाग ने पानी कर किराया वसूलने के लिए विभिन्न स्थानों पर विशेष कैंप आयोजित किए। ये कदम डिप्टी कमिश्नर राजौरी के निर्देश पर उठाया गया और कैंपों की निगरानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की देखरेख में की जा रही है। इन कैंपों का उद्देश्य लोगों को सहूलियत प्रदान करना और बकाया राशि की समय पर वसूली सुनिश्चित करना है। कैंपों में बड़ी संख्या में उपभोक्ता पहुंचकर अपना लंबित किराया जमा करवा रहे हैं और विभागीय अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर लोगों को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन दे रहे हैं। अधिकारियों ने सरकारी कर्मचारियों से भी अपील की है कि वे अपना पानी कर किराया समय पर अदा करें ताकि विभाग को राजस्व प्राप्त हो और पेयजल सेवाओं को और अधिक सुचारू व बेहतर बनाया जा सके। फाइनल कट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।